নমস্কাৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ নতুন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছক হৰুৱাই হাৰিয়ানাত বৃহৎ জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপি চৰকাৰে পুনৰবাৰ নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নায়ব সিং সৈনী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব বিশেষ অতিথি হিচাপে মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব আৰু 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আমি জনাম এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ 17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব 17 অক্টোবৰত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নায়ব সিং সৈনীয়ে নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ ল'ব নায়ব সিং সৈনীয়ে পুৱা 10 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটি হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে বিজেপি শাসিত সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ কিছুদিনৰ পূৰ্বে হাৰিয়ানাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী যি ফলাফল সেই ফলাফলো ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছক হৰুৱাই এক্সিট পোলৰ সমীক্ষাক ভুল তথ্য দেখুৱাই কংগ্ৰেছক হৰুৱাই বৃহৎ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলে বৃহৎ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি নিৰ্বাচনী জল্পনা কল্পনা আছিল সেই সকলো নিৰ্বাচনী জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই হাৰিয়ানাত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে শাসন কৰিবৰ বাবে শাসনৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা গ্ৰহণ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছক হৰুৱাই এবাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নায়ব সিং সৈনীয়ে আৰু ইতিমধ্যে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে অক্টোবৰৰ 17 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি পুৱা 10 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব হাৰিয়ানাৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে শপত ল'ব সেই দিনাখনৰ দিনটোত আৰু মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ লগতে বিজেপি শাসিত যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছো मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर तारीख बदल गई तारीखें चेंज हो गई हैं कब कोई तारीख पहले नहीं आई थी क्योंकि पता नहीं कहाँ से ये तारीखें 15 तारीख मेरे मुख से कहीं सुनी हो या मैंने कहीं कहा हो क्योंकि जब तक कोई डेट नहीं आई उसका ऑफिशियली जो जानकारी है हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे विधायक दल का भी निर्णय है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी विषय है जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस विषय को आगे पार्टी के हमारा विधायक दल भी बढ़ाने का काम करेगा। मैं सभी को इस विजयदशमी पर्व की बधाई भी देता हूं क्योंकि 17 तारीख कौन आएंगे जी? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी उच्च लीडरशिप उसमें रहने वाली है और 17 तारीख को हरियाणा में शपथ समारोह होगा। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो ऑब्जर्वर आएंगे और ऑब्जर्वर विधायकों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद जो भी विधायकों का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। सर कांग्रेस लगातार रिव्यू मीटिंगें कर रही है हार के बाद ईवीएम का भी टिकरा फोड़ रहे हैं। नहीं कांग्रेस देखिए भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई पार्टी है वो तो झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में आना चाहते थे कई जगह वो कामयाब भी हुए हैं हिमाचल में कामयाब झूठ को फैला करके कामयाब हुए हैं वो कर्नाटक में झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं तेलंगाना के अंदर झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं
लोग अब उनके चेहरे को जान चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अफवाहें फैलाते हैं। अब उनकी बात में कोई विश्वास नहीं करता, न उनकी बात में कोई दम रहा है। अब तो वो चाहे गारंटी भी दें, चाहे कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। और हरियाणा के लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि कांग्रेस की कोई गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है, जो ये झूठ बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 वर्षों में जीरो ग्राउंड से लेकर के हर समाज के वर्ग तक ईमानदारी से काम किया है। उसको मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। उसका परिणाम है हम अगर जो भी बात बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार डबल इंजन की करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब देश के लोग, प्रदेश के लोग कांग्रेस के उस झांसे में और उस झूठ में नहीं आने वाले हैं, जो झांसा और झूठ दे करके लोगों को फिर ये लूटने का काम करते थे। उसका परिणाम है कि हिमाचल के अंदर किस प्रकार की लूट है, एक हादसा हुआ है, कर्नाटक में लूट है, तेलंगाना में लूट है। अब वो लूट लोग नहीं सहन करेंगे। कैथल में एक हादसा हुआ है सर, एक परिवार के ही 8 लोगों की मौत नहर में मुंडरी अभी की बात पुंडरी विधानसभा। देखिए, क्योंकि मेरी ये जानकारी में अभी आपने दिया है, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, गहरी संवेदनाएं हैं। और इस दुख की घड़ी में हमारा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूँ।